Now today we are going to study the new chapter of standard 11, chapter number 4, that is called as laws of motion. The name of the chapter is laws of motion. First of all, we will discuss about that what do we understand by the various types of motion. What do we understand by motion first? That we will see first. So let us consider that what is motion first. मोशन किसको कहते हैं? मोशन हरकत को कहते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई चीज हरकत में है, यानी कि अपना पोजीशन कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, then we can say that the object, the particle, the body is in motion. हम कब कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई पार्टिकल मोशन में है? कब कह सकते? Whenever an object changes its position. जब कभी कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, बदलता है, then we can say that it is in a motion. Okay, what is motion? Whenever an object changes its position. What do we understand by motion? Whenever an object changes its position, then we can say that it is called as motion. In our daily life, we see number of particles, number of objects. बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं जो अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं, अलग अलग टाइप्स के. आप देखते हैं कोई राउंड चक्कर लगा रहा है, आपके सामने से कोई गाड़ी निकल कर जा रही है स्ट्रेट. आपने ये भी देखा कोई गाड़ी स्ट्रेट चलेगी, राइट या लेफ्ट टर्न लेती है. इसका मतलब दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन. बट व्हाट काइंड ऑफ मोशन दैट ऑब्जेक्ट्स आर परफॉर्मिंग? वो चीजें, वो गाड़ियां कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? लेट अस कंसीडर दैट whenever an object moves, whenever an object moves in a straight line, हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है जो क्या कर रहा है, which is moving in a straight line, जो आपके सामने से गुजर गया. कैसा? moving in a straight line. Whenever an object moves in a straight line, then that motion is called as, वो मोशन क्या कहलाती है? That motion is called as rectilinear motion. क्या कहेंगे हम उसको? That motion is called as rectilinear motion. What do we understand by rectilinear motion? Whenever an object moves in a straight line without changing or without taking a turn, then we can say that motion is called as, वो मोशन क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है. सेम थिंग्स, whenever an object moves along a curved surface, कोई ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं, जो कर्व्ड सरफेस को लगकर क्या हो रहा है? मूव हो रहा है. और इन सिंपल वे, whenever an object moves along a straight line and taking a turn along a curved road, और स्ट्रेट लाइन जाकर कोई ऑब्जेक्ट आप देखते हैं वो राइट या लेफ्ट को टर्न ले रहा है. इट मींस दैट whenever an object moves along a curved surface,
देन कर्व्ड सरफेस, ये स्ट्रेट चला गया, इसने या तो लेफ्ट या तो राइट को इसने टर्न लिया। whenever an object moves along a curved surface or whenever an object moves in a straight line and taking a turn along a curved road, it is called as, वो क्या कहलाता है, that type of motion is called as curvilinear motion. Okay, what do we understand by curvilinear motion? Whenever an object moves along a straight line and takes a turn along a curved road, then it is called as curvilinear motion. Okay, now whenever, let us consider that whenever an object moves along circumference, whenever an object moves along circumference of a circle, अगर कोई ऑब्जेक्ट कैसा मूव रहा है, कैसा वो अपनी पोजीशन को बदल रहा है, whenever an object moves along circumference of a circle, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कल के ही अतराफ में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, then we can say that वो मोशन क्या कहलाता है, we can say that that type of motion is called as circular motion. Yes, what do you understand by circular motion? Whenever an object moves along circumference of a circle, then it is called as circular motion. Okay, then whenever a force is applied to a body, whenever a force is applied to a body, अगर आपने किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई किया, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, what happens? The body transfers from one point to another point. वो बॉडी क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। कब? Whenever a force is applied to a body, what happens? The body just shifted from, the body transfers from one point to another point. Okay, what happens whenever a force is applied to a body? Then body transfers, body क्या होता है, the body transfers और shifted, कहां से कहां, from one point to another point, from one point to another point, then it is called as, ये मोशन क्या कहलाता है, it is called as, yes, it is called as translational motion. What do we understand by translational motion? Whenever a force is applied to a body, या फिर whenever a force is applied to an object, या फिर whenever a force is applied to a particle, what happens? The body, the object, the particle transfers from one point to another point. That type of motion is called as translational motion. Now let us consider that we have seen that whenever a body moves in a straight line, that type of motion is called as rectilinear motion. Whenever a body moves in a straight line, but when it takes a turn along a curved road, it is called as curvilinear motion. Whenever a body moves along circumference of a circle, it is called as circular motion. Again, what we have seen, whenever
ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी, जब हम किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हाट हैपेंस, द बॉडी जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन. नाउ whenever a torque is applied to a body, yes, whenever a torque is applied to a body, अब torque किसे कहेंगे? Torque is nothing but it is the product of force into perpendicular distance. यानी कि किसी बॉडी पर ऐसा फोर्स लगाना, क्या हुआ, वो बॉडी जैसे आपने ऊपर फोर्स लगाया, फॉर द बेस्ट एग्जांपल फुटबॉल है, फुटबॉल पर आपने किक लगाया, व्हाट हैपेंस, वो बॉल में उछाल पैदा होता है और बॉल जहां जाकर गिरता है इट बिकम्स परपेंडिकुलर. दैट इज नथिंग बट, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आपने फुटबॉल को किक लगाया, उसमें उछाल पैदा हुआ, वो बॉल गोल घूमता हुआ जा रहा है और एक जगह से दूसरे जगह भी ट्रांसफर हो रहा है, जहां जाकर गिरेगा वो गेंद, वो बॉल, इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. दैट इज नथिंग बट द टॉर्क. तो यहाँ पर क्या बताया? whenever a torque is applied to a body, what happens, the body performs translational and rotational motion. देखिए बात कुछ समझ में आ रही है. What type of motion takes place whenever a torque is applied to a body? जब आप किसी बॉडी पर टॉर्क अप्लाई करते हैं, what we observe, we see that the body performs translational as well as rotational motion. So these are the various types of motions that takes place in our daily life. On the basis of motion, the scientist Newton have put forth the three laws. That's why it is called as laws of motion. इसीलिए उसको laws of motion कहा गया. Yes, motion से ताल्लुक कौन से साइंटिस्ट ने अपने पॉइंट्स, अपने व्यूज, अपने आइडियाज पुट अप किए? दैट इज न्यूटन. That's why it is also known as Newton's laws of motion. Why laws of motion is also called as Newton's laws of motion? Yes, because Newton is the first scientist to put forth his own ideas on the basis of motion. That's why it is called as Newton's laws of motion. So let us consider the very first law. न्यूटन का पहला लॉ हम देखते हैं. क्या कहा न्यूटन ने? क्या कहा? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. क्या कहता है न्यूटन? एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर फॉर एग्जांपल क्लासरूम है, क्लासरूम में टेबल रखा हुआ है, उस टेबल पर किसी डस्टर को हमने रख दिया, क्लासरूम का माहौल है, इमेजिन द पिक्चर, उस क्लासरूम में टेबल है, उस टेबल पर हमने इस डस्टर को रखा. जब दूसरे दिन जब हम आकर देखते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं? वो टेबल पर डेस्क, वो टेबल पर ये डस्टर एज इट इज आपको रेस्ट कंडीशन में मिलेगा. इसका मतलब एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. इसको आपने रेस्ट कंडीशन में रखा था, कल आकर देखते हैं तो अपनी ही पोजीशन पर बना हुआ है. उसी तरह से फिर से इमेजिन करो क्लासरूम का ही एग्जांपल. अगर फैन रोटेट है, फैन चल रहा है और कॉलेज बंद होने के बाद आपने फैन का बटन ऑफ करना भूल गए, दूसरे दिन जब आप आकर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? स्टिल द
ब्लेड्स ऑफ द फैन आर इन मोशन। इसका मतलब जो चीज मोशन में थी, कल आप आकर देखते हैं वो मोशन में ही बने रहेंगे। तो न्यूटन सेड दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा कब तक हो सकता है? अनलेस it is acted upon by an external unbalanced force। क्या कहता है न्यूटन? ऐसा कब तक हो सकता है? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आप लगाते नहीं हैं। इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। और एक बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, गली में बच्चे अक्सर फुटबॉल वगैरह खेलते हुए होते हैं, वो बॉल आपकी तरफ आ रहा है, आप चाहे तो पैर से उसको रुका सकते हैं, पैर से आप उसको रुका सकते हैं, बराबर। लेकिन रुकाने की बजाय जो मोशन में आपकी तरफ आ रहा था, आपने रुकाने की बजाय बॉल को वैसे ही जाने दिया। क्या हुआ? आपने देखा जो मोशन में था वो मोशन में ही है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट न्यूटन, every body continues in its state of rest or uniform motion। कब तक हो सकता है ऐसा? Unless it is acted upon by an external unbalanced force। यानी अगर कोई हरकत में है, आप पैर से उस बॉल को रुका सकते हैं with the help of force, और जो रुका हुआ है आपने उसको फोर्स अप्लाई किया, वो हरकत में आ जाता है, वो मोशन में आ जाता है। It means that force is the most important thing, with the help of which the body which is in a rest, it comes under motion, and the body which is in a motion, it comes under the rest। That's why Newton said that every body continues in its state of rest or of uniform motion unless कब तक it is acted upon by an external unbalanced force। सेकंड लॉ, न्यूटन की सेकंड बात क्या बताई? द रेट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट न्यूटन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसे कहेंगे? इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम। तो न्यूटन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम ये भी एक किस्म की गति है, ये भी एक किस्म की रफ्तार है। न्यूटन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या कह रहा है न्यूटन? किसी भी बॉडी का मोमेंटम आप बदल सकते हैं। किसके जरिए? विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स के जरिए। आप क्रिकेट मैच को अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें एक बॉलर बॉल डाल रहा है बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन क्या करता है? फोर्स अप्लाई करके उस बॉल के डायरेक्शन को क्या करता है? बदलता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फिर वो बैट्समैन ने जिस दिशा में फोर्स लगाया था, वो गेंद, वो बॉल उसी दिशा में चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स and it takes place in the direction of force। और वो गेंद, वो बॉल कहाँ जाएगा? किस दिशा में चला जाएगा? जिस दिशा में आपने उसको फोर्स अप्लाई किया। दैट इज द exactly, that is the fact। So what Newton said, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to force। किसी भी बॉडी का मोमेंटम, उसकी गति आप बदल सकते हैं। किसके जरिए? विद द हेल्प ऑफ फोर्स। और फोर्स के ही जरिए क्या हो सकता है? इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस दिशा में आप गति या फोर्स लगाते हैं, उसी दिशा में वो गेंद चली जाती है। दैट इज द सेकंड लॉ। देन न्यूटन
he put forth another law, that is Newton's third law. What he said here? यहां न्यूटन ने क्या बताया? To every action there is always an equal and opposite reaction. क्या कहता है न्यूटन? टू एवरी एक्शन, जैसा एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन आपको मिलेगा जरूर. फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, उस बॉल को, उस गेंद को आपने दीवार पर फेंका, क्या होगा? वो बॉल दीवार पर जब आप फेंकते हैं यानी आपने कुछ एक्शन किया, फौरन कुछ ही देर में वो गेंद दोबारा हमारी तरफ वापस लौट कर आता है. दैट इज नथिंग बट द रिएक्शन. न्यूटन सेड दैट टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction. That is called as Newton's third law. Okay, watch it.